प्रॉब्लम नंबर 3, 1 करा था, 2 होमवर्क था। आई थिंक 2 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नो सर। चलिए, मिस्टर अनीश घोष, an accountant of a private company, has furnished the following particulars for his salary income for the previous year 2020-21. His scale of pay 40,000-2,500-65,000 and date of joining 1/1/2018. Dearness allowance 60% of basic, 80% forming part of basic salary. Commission rupees 1,000 per month. Children education allowance 500 per month for the 3 children. He and his employer both contributes rupees 10,000 per month to the recognized provident fund. Interest credited to RPF 15% per annum. Total interest credited during the previous year 22,500. Professional tax 6,500, out of which 2,000 paid by employer. His employer provided with a self-driven car of 1.6 liter. This car is used for both official and private purpose. All expenses of car was borne by the employer. His employer has allotted 120 equity shares to him on 1/2/2020. Rupees 80 under the employee stock option plan, market value 90. Employer reimbursement medical expenses 25,000 for medical treatment of wife. Employer has grant interest free personal loan 80,000 on 1/10/2020. Rate of interest 12.5%. Compute the salary 2020-21. चलिए करिए। Solution. Computation always heading रहना चाहिए। Computation of सर आपका वीडियो बंद हो गया सर। सॉरी, आपका वीडियो ऑन है सर। हाँ ऑन है तो ऑफ है सर। ऑन है सर ऑफ है। ऑन है सर। ऑन है सर। एक तो ऑन चल रहा है, शो नहीं कर रहे हैं। शो नहीं कर रहा है, ऑफ है। सर आपका ऑफ बता रहा है वीडियो। सॉरी ऑफ बता रहा है सर। स्टार्ट वीडियो में क्लिक करते हैं ना वो सर वाला। आपका वीडियो सर, आपका वीडियो। ओ समझ में आया तब। अच्छा यस सर, आपका वीडियो सर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी the previous year 2020-21. Relating to assessment year 2021-22.
बेसिक सैलरी वर्किंग नोट 1। आई थिंक सबको याद है कैसे स्केल ऑफ पे किया जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी क्या है? स्केल ऑफ पे 40,000 2000। अच्छा, स्केल ऑफ पे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/1/21 18। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है? 1/1/2018। तो बताइए 1/1/2018 टू 31/12/2019 कितना था? 40,000। ₹40,000 per month। Then 1/1/2019 गलत लिखा 18। 1/1/2019 to 31/12/2019 कितना? 42,500। तो मुझे दिखाना पड़ेगा कैसे 40 से 42,500 हुआ है। नो सर, ठीक। नो सर। 1/1/2019 to 31/12/2020 20 सर, 20 सर। 2020। कितना? ₹45,000 45,000 per month. पर मंथ। नेक्स्ट लगेगा? यस, 2021 है। 21 टू 31/12/21 क्या होगा? 47,500। 47,500. मुझे ये बताओ तो उसका बेसिक सैलरी क्या हुआ? बेसिक सैलरी कौन सा पीरियड? 1/4/2020 टू 31/3/2021। बोलो अप्रैल 20 में उसका बेसिक सैलरी कितना था? 1/4/2020 45,000 per month. टू 31/3/2020 टू 31/12/2020। अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक उसका कितना था बेसिक सैलरी? 45,000। 45,000 into 9 months. How 9 much? months। 4,05,000. 4,05,000. At 1/1/2020 to 1/1/2021 to 31/3/2021 कितना? 47,500 for 3 months. 47,500 into 3 months। टोटल 12 हो गया कितना? 1,42,500. बेसिक सैलरी टोटल बोलो। 5,47,500. रुपीज 5,47,500। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है?
ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोगों ने पहले भी कराया था, पहले भी किया था आज, और एक बार एप्लीकेशन किया। कोई डाउट? सर हाँ 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 सर 65,000 जो है वो क्या मैक्सिमम है सर? इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा? यस, इससे बाहर नहीं जा सकता। यस सर। डीए फॉर्मिंग पार्ट कितना डीए? 60% of basic. 60% ऑफ बेसिक और 80% फॉर्मिंग, है तो? Yes, sir. तो 60% ऑफ 5 लाख into 80%, कितना? 2,62,800। 5,47,500 into 60%, 2,62,800. 2,62,800, 800। 65,700 total 3,28,000. 3,28,500. Not forming. %40. Done. Yes sir. Commission. $1,000 करके था। Taxable allowance. Children education allowance. Children education allowance कितना? Sir, 500 for 3 children. $500 into 12 into 3. क्यों? ₹500, 12 month, 3 children. How much? 18,000. Sorry? 18,000. Less. Exemption. Under section. जरूरी नहीं है 10. सेक्शन लिखने का भी जरूरत नहीं है। ₹100 into 12 month into 2 2 children। children. क्यों? नो लिमिट तो? 2. Sir, अरे 2 नो लिमिट children था ना? limit. Allowance? No sir. Sir, वो तो children। परक्यूजिट में था सर, वो फैसिलिटी में। एजुकेशनल फैसिलिटी में Yes, था। sir. यस सर, वेरी गुड। 2 months कितना होगा? 2,400। 2,400. टोटल 15,600. 15,600. Yes. Sir, यस 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 1,000 into 12 month into 2 children होगा ना कि 2 month होगा? ठीक बोला है। अगला 1000 एजुकेशनल फैसिलिटी में था, जहां पर चिल्ड्रन होने के लिए 1000 का एग्जेम्पशन मिलता था फैसिलिटी से, और वहां पर चिल्ड्रन का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एग्जेम्पशन में मैक्सिमम 100 ही एग्जेम्पशन मिलेगा, और वो भी 2 चिल्ड्रन के लिए। सर वो आप 2 months वो लिख 2M दीजिए, का जगह इसलिए 2 वो 2 children Yes, का sir. है। सॉरी 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 सॉरी।
एक्सट्रीमली सॉरी, हो जाता है ना। चल, he and his employer contribution to provident fund, अच्छा और एक चीज, आई थिंक चाँद है, तो चाँद के लिए एक चीज मैं कर ही सकता हूं प्यार से। चाँद हो क्लास में? आई थिंक नहीं है, चलिए। हाउस रेंट अलाउंस received rupees 2,500 per month. Rent paid up to 31/12/2020 rupees rupees 3,000. कोलकाता, मतलब वो कोलकाता में रहता है। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, कितना बेटा? rupees 2,500 into 12. 12 months. Figure 30,000. comes to 30,000. less exemption under section 10(13)(a) for relevant period आई थिंक सबको याद है, जितना महीना वो किराए के घर में था। Yes, sir. चलो, वर्किंग नोट 2, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी for HRA, for calculation of HRA and provident fund. तो दोनों का सेम होता है, इसलिए मैंने सेम ही लिखा। बेसिक सैलरी कितना? 5,75,000. ये नहीं होगा, आरपीएफ कहाँ, क्यों नहीं होगा? ये करने के बाद आप लोग मुझे बताइएगा क्यों मैं एक साथ नहीं कर सकता। चाँद को मैंने चाँद ने पूछा था, लेकिन वो रहता तो बेटर रहता। बेसिक सैलरी कितना है फॉर 9 months? समझ में आया? 9 months क्यों? 1/4/2000 सर चेंज हुआ है उसका सैलरी का। इसलिए ना, वो था भी तो 9 months। 22, 31/12/2020। समझ में आया 9 months क्यों? बिकॉज सर इसको एग्जेम्पशन Yes, sir. 9 months का ही मिलेगा। फॉर 9 months, 9 months मतलब पीरियड stayed in rented accommodation
कितना होगा बोलो सर? मेरा पास 9 मंथ का सैलरी ऑलरेडी मौजूद है, देखो 1 for 20 से 31 12 20 4,05,000 रुपीज 4,05,000 DA फॉर्मिंग पार्ट कितना 60% ऑफ इंटू कितना परसेंट 60%. 60% इंटू 80% फॉर्मिंग दैट इज DA इस पीरियड का हाउ मच 1,94,400 1,94,400 और कुछ होगा सर? कमीशन ऑन टर्नओवर तो नहीं है? ऑन टर्नओवर कमीशन पर मंथ है ना सर? नहीं आएगा। बस सैलरी फॉर 9 months कितना 5,99,400 रुपीज 5,99,400 एग्री? exemption for 9 months A HRA received up to 31/12/20 कितना बेटा 22,500 रुपीज 22,500 कैसे आया सर? क्या 500 into 9 months 2,500 into 9 हाँ माका ओके ओके इतना गुस्सा नहीं। बी रेन पेड minus 10% of salary of 9 months कितना रेंट पेड बोलो सर? रेंट पेड था 3,000 करके इंटू 9 months माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% मतलब 59 5,99,000 कितना होगा? अच्छा रुपीज सर क्यों? एग्जेम्पशन नेवर बी नेगेटिव। यस सर नील हो जाएगा तो डायरेक्टली नील लिखेंगे सर। आप देखने का कोई जरूरत नहीं है। 50% ऑफ सैलरी हो गया सर। सैलरी ऑफ 9 months कोई मतलब ही नहीं है। कितना 2,99,700 2,99,700 लोएस्ट वन। तो लोएस्ट वन क्या होगा? एग्जेम्पशन हाउ मच? ठीक है? क्लियर और नॉट? डन और नॉट बेटा? 9 month क्यों हुआ क्लियर? बिकॉज यस सर
उतना 9 दिन मंथ तक की वो, रहे। हाँ हाँ। लड़की लोग सब क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो एग्जामिशन नील, आ जाओ प्रॉब्लम में। $30,000 और तो कुछ अलाउंसेस नहीं है, तो दैट इज 45,600। नेक्स्ट, contribution to RPF by employer कितना, देखो बोल दिया है, प्रोविडेंट फंड 15% और वो 10,000 पर मंथ करके। Less exempted 12% of salary। अगर ये 9 मंथ का झमेला नहीं रहता तो पूरा ही 12 महीना दोनों के काम में आ जाता, लेकिन ये 9 और 12 है Yes, तो sir. आपको करना पड़ेगा। तो आज का यही सवाल मुझको फोन करके पूछा था। वर्किंग नोट 3, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, बोलो, फॉर RPF basic, how much? 5,75,000. 5,47,500। Yes. 5,47,500। DA forming part कितना? सर ये ऑलरेडी किया हुआ है, ऊपर में जाइए। 3 लाख, 2 लाख, 2,62,800. 2,62,800। कमीशन ऑन टर्नओवर, अगर नहीं है तो लिखने का जरूरत नहीं है। सैलरी फॉर 12 मंथ, बोलो। 8,10,300. 8,10,300। 12% on salary, 97, 236. 236, मतलब इतना तक वो दे सकता था, लेकिन दिया है 1,20,000, तो माइनस 97, 236, बोलो कितना होगा? 22,764. 22,764। contribution, interest credited to RPF 22,500।
सर एक डाउट है सर, बोलो। से HRA में सर एग्जेप्शन क्यों नहीं मिला सर? आ जाओ, पहले 3 माह का तो एग्जामिशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिकॉज यस ऑफ सर, वो भरने का। आई नहीं सर, वो पूरा 9 है मंथ में एग्जामिशन कैसे होगा? एग्जामिशन मतलब लोएस्ट वन, तो लोएस्ट वन में लोएस्ट कौन है? 22,500, 2,99,500 एंड नील। ये तीनों में लोएस्ट कौन है बेटा? नील। आप बोलेंगे नील। सर नील कैसे हुआ? ये तो फिगर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नील। ओके सर, ठीक है। ओके सर, हाँ सर। चलो जी, तो लेस इंटरेस्ट at the rate of 9.5%, कितना? 22,500 into 9.5 divided by 15, कितना? बोलो बोलो बोलो। 14,250। 14,250. माइनस करने के बाद क्या आता है? 8,250. नेक्स्ट, perquisites. Under section motor car provided by employer from own source and maintained by employer, capacity 1.6 liters। क्या होगा बोलो तो? 1600 होगा ना 2400 होगा, 600 होगा ना 900 होगा? सर 1600 होगा सर। वाई? सर 1.6 लीटर है और एम्प्लॉयर उसको मेंटेन कर रहा है। वेरी गुड। 1600 into 12। सर प्लस शॉफर होगा? नो सर, सेल्फ ड्रिवन है। सेल्फ ड्रिवन है, वेरी गुड, लिखना ही नहीं पा रहा। कितना बोलो? बोलो। 19,200। और कुछ? प्रोफेशनल टैक्स बेटा भाई एम्प्लॉयर paid by employer, एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स दिया है, पूरा नहीं दिया है, कुछ हद तक दिया है। ₹2,400 into 12। आपको कहां से मिला ये फिगर? चलिए आ जाइए। प्रोफेशनल टैक्स 6,500 ऑफ विच 2,000 हो, गलत लिखा, ऑफ विच 2,000 पेड बाय एम्प्लॉयर। तो चलिए आते हैं, हाउ मच हो गया। उसके बाद शेयर्स इशूड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कितना कितना शेयर इशू किया है और उसका प्राइस कितना है? 120 शेयर। 120 शेयर और 80 मार्केट वैल्यू 90। ओके, शेयर्स इनटू रुपीस into rupees 90।
less. Amount recovered कितना? Shares into rupees 80. 9,600. $1,200. Naturally, सर मोटर कार में तो सर 1800 पर मंथ होगा ना सर? 1600 था ना, 1800 था. सर 1600 तो कार का पावर था सर. 1800 पर मंथ था. 1800 and 2400. यस सर. 21,600. Reimbursement of medical expenses 25,000 क्या होगा? Fully taxable. Reimbursement of medical 25,000 fully taxable. अगर फैसिलिटी लेता और इंटरेस्ट लोन फॉर पर्सनल लोन नॉट मेडिकल लोन, तो इंटरेस्ट फ्री लोन कब? 80,000 110 2020 स्टेट बैंक ऑफ इंटरेस्ट 12.5%. बोलो तो उसका बेनिफिट क्या हुआ सर? 80,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट उसको देना ही नहीं पड़ रहा है. कितना महीने का इंटरेस्ट सर? 110-20 से लेके 31-3-21 तक ये 6 महीने का उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, तो दैट इज इज बेनिफिट. लोन तो उसको रिफंड करना ही पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट उसको नहीं देना पड़ा. इंटरेस्ट फ्री पर्सनल लोन. मेडिकल लोन होता तो कुछ नहीं होता. पर्सनल लोन कितना सर? 80,000 into 12.5% into 6/12. yes or no? क्यों 6 महीना? यस सर. 110 से लेके बोलो कितना होता है? 80 into 12.5% into 6/12. वाह, स्ट्रेट वे में 5,000. Total perquisites plus 1,200 plus 24,000 plus 21,600. Is it 76,800? सर लोन तो सर 20,000 से एक्सीडिंग जितना होता है उसमें ही ना देते सर. ना 20,000 होता है तो नो. 20,000 से ऊपर होगा तो फुल टैक्स. सर फुल टैक्स क्यों देंगे? जितना होगा उससे 20,000 लेस ना करेंगे. ना 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 ना, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है. इसका मतलब वो नहीं है. 20,000 तक उसका छूट दिया गया था. मतलब इन एक्सेस ऑफ 20,000 टैक्सेबल ऐसा कुछ नहीं बोला. इन एक्सेस ऑफ 20,000 दैट इज टैक्सेबल. नो. मतलब सर 21,000 होगा तो पूरा 21 के ऊपर ही टैक्स. यस, 21 होगा तो पूरा 21 के ऊपर ही टैक्स होगा. और कुछ? नो सर. चलिए, दैट इज ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी कितना? ग्रॉस सैलरी ऐड करो, बोलो. अमाउंट 547,500, 328,500, 12,000, 45,600, 22,764, 8250 plus 76,800, 10 lakh
41,414. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Less exemption, deduction under section 16 1A, standard deduction कितना? 50,000. कितना? सर 50,000. 50,000. और that is 6,000 I think, ताई ना? Professional tax, sir, professional tax 6,500. उसमें कुछ पार्ट एम्प्लॉयर ने दिया था, तो whatever में भी प्रोफेशनल टैक्स कौन दिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसको मिलेगा, उसको इम्पोर्टेंट है। बोलो 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 सुंदर से बोलो। 56,500. टैक्सेबल सैलरी 9,84,914. 914 क्लियर और नॉट? कोई डाउट? नो सर. मैंने अब क्लास 4 और 5 करने के लिए दिया है, वो घर में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक पे वो बोल दिया है, साल के शुरू में इंक्रीमेंट का डेट बोल दिया है, डियरनेस अलाउंस। सर ये तो फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग कुछ नहीं बोला है, तो एज्यूमिंग एंटरली फॉर्मिंग पार्ट। अच्छा, एजुकेशन फैसिलिटी दिया है, मार्केट वैल्यू 2,500 बोल दिया है। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट 15% ऑफ बेसिक एंड डीए टू आरपीएफ, वेरी गुड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द फंड rupees. He is provided with the rent-free furnished accommodation in Kolkata having municipal value 72,000. Rent paid by employer 1,20,000. मतलब एम्प्लॉयर जो घर किराए में उसको दे रहा है वो अपना सोर्स से नहीं, किराए में लेके दे रहा है, दैट इज रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर बोल दिया है। and furnished with furniture costing rupees 25,000 from own source. में एक लोन लिया था, टू का लोन, पर्पस नहीं बोला है। एम्प्लॉयर फॉर अ पर्सनल पर्पस, सर्वेंट सैलरी, गैस इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स ऑफ ए कंडीशन। क्या होगा बोलो तो, ये लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा सर? टैक्सेबल है सर, फुल्ली टैक्सेबल। कौन सा कैटेगरी? परक्यूजिट सर। एक थप्पड़, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। यस सर, प्रॉफिट इन हाँ लिeu। सर, सॉरी सर, सॉरी। टर्म्स चेंज हो रहा है, टर्म्स चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन। स्कीम एंड इंश्योरेंस से मिलना, यूआरपीएफ से मिलना। यस सर। ये 3 के आइटम बता के रखा था, कुछ पढ़ते नहीं है सब। सॉरी सर। चलिए बस ये प्रॉब्लम आराम से करेंगे हम लोग। डन। मंडे सैलरी का मैं कोशिश करूंगा लास्ट क्लास करने के लिए। एनी डाउट मंडे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ओके सर। जो डाउट सबको बोल रहा हूं, जो डाउट है मंडे क्लियर कर लीजिएगा।
सर रिटायरमेंट बेनिफिट जो बाकी है ओह माय गॉड, मैं वही सोच रहा इतना जल्दी कैसे हुआ। हाँ बाकी है, ठीक है, चलिए यहाँ तक जो है वो कंप्लीट कर लेना, रिटायरमेंट बेनिफिट बाकी है। डन, यस सर। चलिए